Hello and good morning my in the 10th live daily. Myself Pradeep Gupta sir, welcome to you all of you guys of class 10 in your physics classes. Today the 7th video lecture of magnetic effect of current. In this video lecture we have discussed direction of current. In the direction of current, we discuss Lenz's rule or law. Number 2, Fleming's right hand rule. Right hand rule. And after this, generators. Number 1, AC generator, and number 2, DC generator. So today in this video lecture we cover these 3 topics. The first topic is Lenz law, second topic is Fleming right hand rule, and third topic is generator, AC generator and DC generator. So guys, let's begin. Till now you have not subscribed the Sri Hans Krishna Vidya Sir YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon and share the video more and more to your friends and relatives. Dear students, Lenz law used to determine the direction of induced current in the coil, or the coil is either circular or rectangular. According to the Lenz law, the direction of the induced EMF or induced current in the coil will be such that it always opposes any changes in the magnetic field through the coil. It means if the magnet move toward the coil, here this is the coil, this is the coil, this is the coil, if the magnet, this is the magnet, move toward the coil with the north pole, that is the north pole as you seen, then the magnetic flux through the coil increased. बच्चों, लेंज लॉ के मुताबिक लेंज ने क्या किया कि उन्होंने इस मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को जब कॉइल की तरफ क्या किया, मूव कराया, कॉइल की तरफ मूव कराया, तो उन्होंने यह देखा कि वहाँ कॉइल के भीतर जो है क्या कर जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। एंड द करेंट इन द कॉइल will be the such as a direction that it will try to decrease the magnetic flux through it. Hence, इसके बाद लेंज महोदय ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने मोशन के डायरेक्शन को बदला, लाइक दिस।
देख रहे हैं हम, अब क्या कर दिया गया, मौसम के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। तो चेंज करने पे क्या हुआ, हेंस द फेस ऑफ द कॉइल टुवार्ड द नॉर्थ पोल विल बी मैग्नेट एक्वायर्ड द एंटी क्लॉक करेंट बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज करेंट कंसिस्ट नॉर्थ पोल। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो करंट का जो फ्लो है इस तरीके से है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसलिए ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि यहाँ कॉइल जो है वह क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉइल जो है नॉर्थ पोल को सजेस्ट कर रहा है। और जब उन्होंने, जो अभी मैं बता रहा था कि जब उन्होंने कॉइल में मैग्नेट को क्या किया, डायरेक्शन को बदला, अब मैग्नेट का जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कॉइल के भीतर में साउथ डायरेक्शन जनरेट हो जाता है और करंट का जो डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज हो जाता है। करंट डायरेक्शन क्या हो जाता है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। That it means these two observations shows that the current in this, the current when the magnet away from the coil, the current moves clockwise. The current moves clockwise and the flux, the magnetic flux through the coil decreases, and the magnetic flux through the coil decreases. To oppose this decreasement magnetic flux, the face of the coil toward the magnet acquire the south pole to attract the magnet. इसमें यहाँ पर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जब टुवार्ड द मैग्नेट होता है तो यहाँ पर ये रिपेल करने लगता है, रिपल्सन का होता है। तो दिस इज द लेंज लॉ। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट लेंज गिवन हिज लॉ। आई रिपीट द हेंज लॉ अगेन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ of induced current in the coil will be such that they always oppose any change in the magnetic field through the coil. That is the Lenz law. Our the next topic is Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. With the help of Fleming right hand rule, we also find the direction of the induced current. Fleming के राइट हैंड रूल से भी हम इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बच्चों पिछले दिनों जब हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ाया था उसमें आपको याद होगा कि हम लोगों ने मिडिल फिंगर को सेंटर से रिप्रेजेंट किया था, सी फॉर सेंटर तो सी फॉर करंट। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हैं, दैट इज द मिडिल फिंगर एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट मिडिल, दैट मीन द सेंटर, सेंटर मीन्स सेंटर, सी फॉर सेंटर तो सी फॉर करंट। तो हियर वी कैन से दैट द मिडिल फिंगर दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
हमने कहा था 4 फिंगर, F for finger, F for field, F for 4 finger, F for field. Field means magnetic field. The 4 finger, it is the 4 finger. The 4 finger represents or indicates the direction of magnetic field. And the thumb, as you show, all these three are perpendicular to each other. All these three are perpendicular to each other at 90 degree. Thumb indicates the direction of motion of the current. Direction of motion of the current or force. लेफ्ट हैंड रूल में फोर्स था. क्लियर है बच्चों? अगेन आई रिपीट इट. C for center finger, C for current. The middle finger or center finger indicates the direction of the induced current. F for 4 finger, F for field, magnetic field. The 4 finger indicates the direction of the magnetic field. Thumb indicates the direction of the motion or force according to the Fleming right hand rule. So what the Fleming right hand rule says that stretch your 4 finger like this, given in my figure. Stretch your 4 finger like this. Stretch your hand and stretch the thumb, 4 finger and middle finger perpendicular to each other, like this drawing. If the 4 finger points the direction of the magnetic field, the thumb points the direction of the motion or force of the conductor, then the middle finger will point the direction of the induced current in the conductor. That is the Fleming right hand rule. Clear students? जब हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे पर, कौन अंगुली को, तो थंब को, 4 फिंगर को और मिडिल फिंगर को, जब हम एक दूसरे पर परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं तो हमारा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, थंब हमारा मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, फोर्स को रिप्रेजेंट करता हो, फोर्स के डायरेक्शन को, तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वह इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराएगा. दैट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. Students, in previous class we have already discussed there are 2 types of current. Again here I repeat it, the direct current or the alternate current. The current which flow in a circuit in one direction, either in positive direction or either in negative direction, is known as the direct current or DC. बच्चों, जब करंट जब फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन हमेशा एक हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, तो उस तरह के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं. डायरेक्ट करंट जो होगा वह 2 तरह का हो सकता है. यहाँ ग्राफ मैंने बनाया है. यह ग्राफ आप देख रहे हो, यह जो है एक स्ट्रेट लाइन है. तो यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ यह बता रहा है, यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यह बताता है यह पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक कांस्टेंट है. ये यहाँ पर जो करंट के वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रहा है, और ये भी एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. तो ये वेरिएबल डीसी है और ये कांस्टेंट डीसी है. जब टाइम के साथ हम करंट को का ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं. दूसरा जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था,
वह है आपका अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट में क्या होगा बच्चों, उसका ग्राफ मैं मैनुअली प्लॉट कर दे रहा हूँ। उसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों कि ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, ये वो हो गया, ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या होगा, कभी ये ऊपर मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट जो है कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और कभी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इस तरह के से। तो जब करंट जो है ये हमारा हो जाएगा एसी करंट, अल्टरनेट करंट के बारे में बता रहे हैं। जब टाइम और करंट के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें और कभी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करें, तो इस तरह के करंट को हम अल्टरनेट करंट एसी कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि द करंट हुज डायरेक्शन गेट रिवर्स्ड पीरियोडिकली is known as the alternate current. The magnitude of the alternate current not be constant. It vary time to time. The direction of the alternate current becomes positive and negative alternately. इन इंडिया, डियर स्टूडेंट्स, इन इंडिया, भारत में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेट करंट इज 50 हर्ट्ज। इसको बच्चों याद कर लेंगे। भारत में अल्टरनेट करंट की जो फ्रीक्वेंसी सेट की गई है भारत के लिए वह 50 हर्ट्ज है। भारत में 50 हर्ट्ज अल्टरनेट करंट की सप्लाई की जाती है। इट मीन्स this current complete 50 cycles in 1 second. The AC current in India complete 50 cycles in 1 second. Clear? Sometime asked what is the source of AC and DC? The source of AC is powerhouse or AC generator, inverter or car alternator are the source of AC alternate current. Whenever the cells or batteries are the source of DC direct current. बच्चों यहाँ एक बात आती है कि जब डीसी करंट था ही तो फिर एसी करंट की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। सो एडवांटेज ऑफ डीसी, एडवांटेज ओवर द डीसी करंट। एसी alternate current can be easily converted into DC using rectifier. डीसी करंट से हम बड़ी आसानी से एसी करंट को रेक्टिफायर की मदद से बना सकते हैं, जिसे हम कन्वर्टर कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द एसी इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग द डीसी। दूसरा, एसी करंट का उत्पादन करना डीसी करंट का उत्पादन करने से चीप था, सस्ता था। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू long distance without much loss of electric power than the DC. AC करंट को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कराने में जो इलेक्ट्रिक का जो लॉस होता था वह DC करंट की तुलना में काफ़ी कम होता था। AC of any desired voltage can be obtained by using transformer. ट्रांसफार्मर की मदद से जैसे भी वोल्टेज हमको चाहिए था, अपने चाहिए गई हर तरह के वोल्टेज के करंट को हम एसी में प्राप्त कर सकते थे।
The magnitude of AC can be reduced by using choke coil without loss of energy. हम बिना एनर्जी का नुकसान किए हुए ही चोक कॉइल की मदद से AC के मैग्नीट्यूड को आवश्यकता अनुसार हम बदल सकते थे, कम या ज़्यादा कर सकते थे। तो प्रश्न आता है कि क्या केवल AC से लाभ ही हुए, क्या AC का कोई हानि भी है? तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ AC ओवर DC। The shock of AC is attractive and the shock of DC is repulsive. AC करंट का जो शॉक होता है, झटका लगता है विद्युत का, वह लोगों को अपनी ओर खींचता है, जबकि DC का जो झटका होता है लोगों को दूर फेंकता है। इसलिए DC से कम नुकसान होता है और AC में होने वाला नुकसान ज़्यादा होता है। It is dangerous to work with AC at high voltage because it can give severe shock if someone accidentally touches the faulty insulation of the wire। कह रहा है कि AC करंट का जो शॉक होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है। यदि हम गलती से भूलवश हम किसी AC वाले तार को पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं, तो चूँकि AC का वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मिलने वाला शॉक भी जो होता है वो ख़तरनाक होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब होता है, हानिकारक होता है। AC कैन नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रो पेंटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक्सेट्रा। AC का प्रयोग हम इलेक्ट्रो पेंटिंग के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रो पेंटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए हम लोग हमेशा DC का ही उपयोग करते हैं। AC flows on the surface of wire and not inside the wire. Hence, several thin wires are used for its transmission and not a single thick wire. कह रहा है कि AC जो है वह तार के भीतर से होकर के प्रवाहित नहीं होता है, बल्कि तार के बाहर से होकर के प्रवाहित होता है। इसी कारण से हम लोग AC को ट्रांसमिट कराने के लिए एक मोटे से तार का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पतले पतले अनेक तारों का प्रयोग करते हैं। दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ AC ओवर द DC। स्टूडेंट्स, आवर द नेक्स्ट टॉपिक इज AC जनरेटर। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज जनरेटर? Generator is a kind of a machine which convert mechanical energy into the electrical energy। बच्चों, जनरेटर जो है एक प्रकार का मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमो। जनरेटर को हम डायनेमो भी कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। देयर आर two types of generator, AC generator and the DC generator. Here this is the ray diagram of AC generator. What is AC generator? If the generator convert mechanical energy into the alternative current in the source of energy, its form of the alternative current, then that machine is known as the AC generator. What is the principle of AC generator? AC generator is based on the principle that when a magnetic field is changed in a coil or a circuit, an electric current is induced in it. When the coil is rotated in the magnetic field, the current is induced in it. It means the AC generator works on the
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर जो है, संक्षेप में हम कहें तो एसी जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों यहाँ जो ड्राइंग है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, आइए सबसे पहले उसे हम समझें। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर। फर्स्ट, आर्मेचर कॉइल ABCD is known as the armature coil, which consists a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core. A strong magnet. These are the U-shaped magnet or horseshoe magnet. A strong horseshoe magnet NS in the given diagram is used to produce the magnetic field, and coil ABCD is placed between the pole of the magnet such that magnetic field is perpendicular to its side। बच्चों यहाँ याद रखना है कि कॉइल ABCD को हम मैग्नेट्स के पोल के बीच में प्लेस करते हैं जो उस पर परपेंडिकुलर होगा, उसके साइड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ you clearly seen S1 and S2 are the two metallic hollow rings to which the free ends of coil, ये जो coil देख रहे हो ABCD, इसका एक एंड यहाँ S1 से अटैच है और दूसरा एंड आप देख रहे हो किससे अटैच है, तो S2 से अटैच है। क्लियर? To which free ends of coil ABCD are connected in such a way that the slip rings rotate the coils. End A is soldered with S2 and end D is soldered with, D को किससे सोल्डर किया हमने, S1 के साथ, A को किया है S2 के साथ। एंड द डॉटेड लाइन इज कॉल्ड द शाफ्ट। बच्चों शाफ्ट है जिस पर वो आर्मेचर हमारा घूमेगा, कॉइल हमारा घूमेगा। एंड द ब्रश B1 एंड B2 आर द ब्रश मेड बाय द कार्बन, सो इट इज़ नोन एज द कार्बन ब्रश। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसा कि आपने हमने मोटर में बताया था कि यदि हम तार को सीधे हम क्या कर दें, तार को सीधे हम इसमें अटैच कर दें, तार को क्या कर दें हम सीधे अटैच कर दें, तो क्या होगा, सीधे अटैच कर देने पर, तार को हम सीधे अटैच कर देंगे तो ये तार ट्विस्ट कर जाएगा और टूट जाएगा। तो हम इस तार को हम यहाँ पर हम सोल्डिंग कर देते हैं, और ये कार्बन जो ग्रेफाइट का होता है बना हुआ, ये कार्बन जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो इसको टच करता रहता है, तो इससे होकर के करंट की सप्लाई हमको मिलती रहती है, टूटता भी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेस, आप समझ गए? चलिए एक बार इंग्लिश में उसके लिए बोल देते हैं। देयर आर टू मेटेलिक और कार्बन ब्रशेस। बेसिकली द कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड in this model that is called the AC generator. They are connected with the slip S1 and S2 respectively, such that the brushes do not rotate with the slip rings. The end of the brushes are connected to the galvanometer G. Or an external load
of resistance to detect the flow of current in the circuit. Now, what is the working of the AC generator? बच्चों, अब AC जनरेटर काम कैसे करता है हम लोग ज़रा उस पर चर्चा कर लें। AC जनरेटर काम कैसे करता है? तो आप देख रहे हो कि एक्सिस जो है, शाफ्ट जो है जिस पर ये कॉइल घूम रहा है, उसका हम लोग उसका रोटेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है कि हम लोग कैसे घुमा रहे हैं इसको हम लोग घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। देखो ऐसे करके घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द कॉइल ABCD रोटेट क्लॉकवाइज, जब कॉइल ABCD क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये जो AB होगा, यह AB और दूसरा कोर कौन है? CD है ये। अब दोनों जगह फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा लो। जब राइट हैंड रूल लगा लोगे तो वहाँ पर हम यह देखेंगे कि यह कॉइल क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हम प्लेस किए हुए हैं, याद है ना। तो साइड AB और साइड कॉइल का जो साइड CD है वह परपेंडिकुलर प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के। तो साइड AB जो है वह ऊपर की ओर मूव कर रहा है और साइड CD जो है वह नीचे की ओर मूव कर रहा है। साइड AB ऊपर की ओर मूव कर रहा है और साइड CD जो है वह नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। साइड AB ऊपर की ओर मूव करने से तो यहाँ पर देख रहे हो कि करंट का जो फ्लो हो रहा है वह A से B की ओर हो रहा है और इसमें C से D की ओर हो रहा है। करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है? AB में A से B की ओर और CD में C से D की ओर करंट का फ्लो हो रहा है। D एंड से जब आया करंट कार्बन ब्रश से होते हुए गैल्वेनोमीटर में गया तो आप देख रहे हो कि करंट का फ्लो एक्सटर्नल सोर्स पर B1 से B2 की ओर हो रहा है। कहाँ से कहाँ की ओर हो रहा है? B1 से B2 की ओर हो रहा है। इसको याद रखना है, B1 to B2, B1 to B2। अब ये क्या हो रहा है कि होते होते ये आधा रोटेट कर जा रहा है। ऐसे था ये, ऐसे जो था, मेरे हाथ को देख रहे हो, तो अब ये ऐसे हो गया, पूरा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। अब देखो ये फर्स्ट हाफ का था ये ड्राइंग, अब ये सेकेंड हाफ में आ गए हम लोग। ये सेकेंड हाफ का ड्राइंग है, सेकेंड हाफ रोटेशन। सेकेंड हाफ में भी कॉइल हमारा क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सेकेंड हाफ में क्या हो गया कि जहाँ अब CD था वहाँ AB आ गया और जहाँ AB था वहाँ पर CD आ गया। अब CD का जो डायरेक्शन है वह अपवर्ड है रोटेशन का और AB का जो डायरेक्शन है वह डाउनवर्ड है। सेकेंड हाफ में CD का डायरेक्शन अपवर्ड है और AB का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस बार जो करंट का फ्लो है वह AB में देख रहे हो B से A की ओर है। फर्स्ट हाफ में A से B की ओर था। सेकेंड हाफ में आप देख रहे हैं करंट का जो डायरेक्शन है वह अब बदल चुका है, अब चेंज कर चुका है, रिवर्स हो चुका है। अब वो करंट का डायरेक्शन B से A की ओर है और CD में डायरेक्शन बदल कर रिवर्स हो करके D से C की ओर हो चुका है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी अब बदल चुका है। जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बदल चुका है तो यहाँ देखोगे कि अब एक्सटर्नल सोर्स पे भी अब करंट का डायरेक्शन, यहाँ देखो ये B2 से B1 की ओर है। इस वाले में इसमें था B1 से B2 की ओर और यहाँ पर है B2 से B1 की ओर। तो आप देख रहे हैं कि हाफ रोटेशन में एक्सटर्नल करंट का डायरेक्शन B1 से B2 की ओर है और हाफ रोटेशन में एक्सटर्नल करंट का डायरेक्शन B2 से B1 की ओर है, मतलब रिवर्स हो जा रहा है। क्लियर है? क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है। इज इट क्लियर? चूँकि यहाँ पर हर बार हाफ रोटेशन पर डायरेक्शन हमारा रिवर्स हो रहा है तो इसी के कारण से इस जनरेटर का नाम AC जनरेटर है। कौन जनरेटर है? AC जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हाफ में अलग होता है और फिर हाफ के बाद दूसरा होता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर।
मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार मैं बोल दूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से आप लोग केयरफुली इसको सुनेंगे। When the coil A, B, C, D rotate clockwise with the magnetic field perpendicular to the side AB and side CD, the side AB of the coil move upward and side CD of the coil move downward. When the coil rotates, magnetic field changes through it and induced EMF is produced in the coil. Applying the Fleming right hand rule, the side AB and side CD of the coil ABCD, we find the induced current of side AB is from A to B and side CD is from C to D. Here is a question arise. What is the magnitude of current B to C? Because B to C or A to D is parallel to the magnetic field. So net magnitude is 0. So here it is neglected. बच्चों यहाँ पर बी सी और ए डी वाला जो है यह उसके पैरेलल है। पैरेलल पर हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर कोई भी करंट का इंडक्शन नहीं होता, इसलिए 0 इसको माना जाता है। So the current is outer circuit from brush B1 to B2 in the first half of rotation. After the half rotation, side AB and CD interchange the its position. Now AB is placed here and CD is placed here. When the AB CD coil rotates, side AB now the side AB move downward and side CD move upward. Again the Fleming right hand rules, we found the induced current in side AB is from B to A and side CD is from C to D. The direction of current after the half rotation we get reversed in the coil ABCD. In the outer circuit, the current is now moved from B2 to B1. B2 to B1. It means the polarity of the brushes change after every half rotation. So this current is known as the alternate current and the device is known as the AC generator or AC dynamo. This is the whole concept of AC generator. Dear students, the next topic is DC generator. The next topic is DC generator. बच्चों DC जनरेटर में जाने से पहले हम लोग यह जान लें कि DC जनरेटर है क्या। तो सिमिलरली जैसा कि AC जनरेटर एक मशीन था जिसे अल्टरनेट करंट प्रोड्यूस किया जा रहा था, जनरेट किया जा रहा था, वैसे ही DC जनरेटर भी एक मशीन है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं
जिसका एनर्जी का फॉर्म जो होता है वह डायरेक्ट करंट के रूप में होता है. सो वी कैन से दैट डीसी जनरेटर इज ए काइंड ऑफ ए मशीन विच चेंज द मैकेनिकल एनर्जी into the electrical energy in the form of direct current. Similarly, the DC generator also based on the principle of electromagnetic induction. AC जनरेटर की तरह DC जनरेटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस है. कंस्ट्रक्शन, बच्चों कंस्ट्रक्शंस भी दोनों का सेम है. आप देख रहे हो यहाँ भी हमारे पास कॉइल है ABCD, देख रहे हो ना ABCD हमारे पास कॉइल है. यहाँ भी हॉर्स मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स मैग्नेट है. ठीक है, यह कॉइल हमारा सॉफ्ट आयरन कोर से बना हुआ है जिसमें बहुत सारे अधिक नंबर में कॉपर के वायर जो है तो क्या किए गए हैं, लपेटे गए हैं, वुंड किए गए हैं. बस डिफरेंस क्या है बच्चों कि इस बार यहाँ पर कम्यूटेटर लगा हुआ है. पिछले बार रिंग लगा था, इस बार क्या लगा हुआ है, स्प्लिट रिंग है. S1 और S2 आधे आधे, देखो ये आधा है, ये भी आधा है. ठीक है, S2 के साथ हमने यहाँ पर B2 ब्रश लगा दिया कार्बन का, और S1 के साथ हमने B1 ब्रश लगा दिया है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द AC जनरेटर एंड द DC जनरेटर. आपको एकदम याद आ गया होगा कि सेम ड्राइंग हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बनाया था. हम लोगों ने सेम ड्राइंग किसके लिए बनाया था, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए भी बनाया था. Clear? That is the drawing and the main parts used in the DC generator. कि बच्चों DC जनरेटर में हम लोग ये जो मेन पार्ट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं वो यही है. अब फिर क्या करना है, जैसे AC जनरेटर भी देख रहे थे कि क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा था. देखो ये क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है. जब क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो वही बात, क्लॉक वाइज रोटेट करेगा तो AB जो है वह अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और CD जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम देखेंगे करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन जो है AB कोर पर A से B की ओर है, CD कोर पर C से D की ओर है. ठीक है, और करंट का डायरेक्शन जो आउटर करंट है, जो इंड्यूस करंट है आउटर निकल रहा है वह B1 से इधर की ओर है, B2 की ओर है. आफ्टर द हाफ रोटेशन द कॉइल साइड्स इंटरचेंज दियर पोजीशन. हाफ रोटेशन के बाद कॉइल के साइड अपने पोजीशन को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं. जहाँ CD था वहाँ AB हो गया है और जहाँ AB था वहाँ CD हो गया है. ठीक है, आप इसे देख पा रहे हो. हाफ रोटेशन के बाद जिन्होंने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया है, अभी भी कॉइल ABCD हमारा क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है. अब AB का जो मूवमेंट है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है. AB का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और CD का जो मूवमेंट है वह अपवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, CD का मूवमेंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है और AB का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब हम लोग यहाँ पर फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हम देख रहे हैं कि हम यह देख पा रहे हैं कि AB का जो से इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वह अब चेंज हो चुका है. वह अब क्या हो चुका है, B से A की ओर हो चुका है. क्या हो चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं B से A की ओर हो चुका है और CD का भी डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग के रूल से D से C की ओर हो चुका है. लेकिन जो आउटर करंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कम्यूटेटर लगा दिया था, स्प्लिट करा दिया था, तो अब जो है वह AB जो है अब वह चेंज होने के बावजूद भी वह S1 कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है. ठीक है, और CD जो है वह S2 कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है. क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होता है कि AB हाफ रोटेशन के बाद भी जो आउटर करंट है हमारा, वो आउटर करंट हमारा B1 से B2 की ओर ही मूव करता है. तो आप देख रहे हैं आउटर करंट जो यहाँ से निकल रहा है, करंट जो इंड्यूस करंट है जो बाहर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकलने वाले करंट के डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होता है. इस कारण से इस करंट को उत्पन्न करने वाले मशीन को हम DC जनरेटर कहते हैं. ऐसे उत्पन्न होने वाले करंट को हम DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं.
दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ द डीसी जनरेटर। तो बच्चों, आज आप लोगों ने इतने टॉपिक्स को आप लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह लेसन पसंद आया होगा। इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक वीडियो उस पर भी मैं लेकर के आऊँगा। एक छोटा सा एक वीडियो होगा जिसमें हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, बार बार देखिए और अच्छे से आप समझ लीजिए। आपके लिए एसी जनरेटर जो है इस बार सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। वो बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस से बाहर है। इंटरनल में वो रहेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में वो नहीं रहेगा। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस वहाँ कंप्लीट सर्किल था। वहाँ पर जो है वहाँ पर लगा हुआ था आपका पूरा का पूरा सर्कल लगा हुआ था, उसको स्लिप रिंग लगा हुआ था। और यहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा हुआ है। डीसी वाले में स्प्लिट रिंग है और उसमें स्लिप रिंग है। ठीक है, स्लिप रिंग रहने से डायरेक्शन वहाँ बदलता रहता है। स्प्लिट रिंग रहने से आउटर इंडक्शन करंट जो है वह यहाँ पर बदलता नहीं, उसका डायरेक्शन सेम रह जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो and subscribe the Srihans Krishna Vidyasthali YouTube channel. Goodbye students, bye bye.